السلام علیکم ڈی ویورز، کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ نیا سال آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اس نئے سال کے آمد سے ہے نا وہ جتنے بھی پریویس ایئر کے آپ کے مسائل ہیں وہ ختم کر دے اور یہ جو پورا سال ہے آپ خوشیوں سے انجوائے کریں۔ تو ناظرین، آج کی جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے اباؤٹ منتھلی انکم اور مدنی چینل کی ٹوٹل کتنی انکم جو ہے نا مولانا الیاس قادری کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ فیضان مدینہ سے کتنا اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اور زکوٰۃ، فطر اور اس طرح کی جتنی بھی اماؤنٹس ہیں وہ مولانا الیاس قادری کے اکاؤنٹ میں کیسے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کا ایک کلپ دیکھیں، پھر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش کرنی تھی کہ الحمدللہ ان دنوں کے اندر لاکھوں مسلمان فطرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات ادا کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کا فطرہ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ لاکھوں بچے بچیاں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مساجد کی تعمیرات، 80 سے زیادہ دینی خدمت کے شعبہ جات ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کا آپ نے یہ کلپ دیکھا جس میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک مدنی بھائی کی بات سن سکتے ہیں کہ آپ کا جتنا بھی فطر ہے، آپ کا جتنا بھی جو فطرانہ ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ نے مدنی چینل کو دینی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر آپ کسی بھی جو آپ کے ہمسایوں میں حقدار آپ انہیں نہیں دے سکتے، آپ کے رشتہ داروں میں جو حقدار ہیں آپ انہیں نہیں دے سکتے، آپ کے جو قریب جو غریب لوگ رہتے ہیں آپ انہیں نہیں دے سکتے۔ صرف اور صرف آپ مدنی چینل کو دیکھیں، کیونکہ مدنی چینل والوں کے پاس یا دعوت اسلامی کے پاس بے شمار جو بچے ہیں نا اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، مساجد بنائی جا رہی ہیں۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے مساجد کا بنانا یا بہت زیادہ علماء کرام کا بنانا یہ ایک اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، درست چیز ہے، اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن جو حقدار ہیں انہیں میرے خیال سے دینا چاہیے، کیونکہ عید کے موقع پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چاند رات کو شاپنگ نہیں کر سکتے اور وہ اپنے 2 ٹائم کا کھانا نہیں پورا کر سکتے، تو وہ شاپنگ کہاں سے کریں گے؟ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں، انہیں پروموٹ کریں۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کریں گے؟ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے۔ جو شخص بیرون ملک رہتا ہو اور اس کی فیملی، اس کے بچے، وہ چاہے پاکستان رہتے ہوں یا اس کے ساتھ ہی بیرون ملک رہتے ہوں، بہت سے لوگ صدقہ فطر کے حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ صدقہ فطر کس حساب سے دے گا۔ بطور خاص جب فیملی پاکستان میں رہ رہی ہو یا کوئی بھی اپنے ملک رہ رہی ہو، لیکن وہ جو شخص جو گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، وہ یو کے میں رہتا ہے، وہ کہیں اور کسی ملک میں ہے، تو اب اسے صدقہ فطر کس انداز سے ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، غنی شخص پر اپنا صدقہ فطر اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اس پر لازم ہوتا ہے۔ اب یہ جس پر لازم ہو رہا ہے اس کی جگہ کا اعتبار ہے، وہ کہاں رہ رہا ہے۔ وہ اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان کے حساب سے دے گا، وہ اگر یو کے میں رہ رہا ہے، اگرچہ عارضی طور پر اس وقت یو کے میں ہے، تو اب جس پر واجب ہے اس کو اپنے اس علاقے اور اپنی اس جگہ مکان کے اعتبار سے صدقہ فطر وہ ادا کرنا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو کا یہ کلپ دیکھا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ چلو جو پاکستان میں مقیم ہے وہاں تک بھی رسائی مولانا الیاس قادری کی سمجھ میں آتی ہے۔ جو بیرون ممالک چلے گئے ہیں، غلطی سے وہ یو کے، کینیڈا، امریکہ، دبئی کہیں بھی شفٹ ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا فطرانہ ہے نا مدنی چینل کو دیں، کیونکہ یہ واجب کر دیا گیا ان کے اوپر۔ بلکہ یہاں پر صرف اور صرف یہ دعوت اسلامی نہیں، اس وقت پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جتنے بھی یہ پیر و فقیر ہیں، جتنے بھی دربار ہیں، جتنے بھی پیر ہیں نا، وہ ڈیمانڈ یہی کرتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں عشر بھی دیں، ہمیں فطرانہ بھی دیں، ہمیں صدقہ بھی دیں، ہر چیز، ایون دیٹ قربانی کی جو خالے بھی ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ ہمیں دیں، کیونکہ ہم بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے بچوں کو مدارس میں وہی روکھی سی دال دینی ہوتی ہے، اور وہ روٹی جسے نعوذ باللہ کتا بھی نہ کھائے وہ روٹی بچوں کو دی جاتی ہے۔ میں نے اکثر ان کے فیضان مدینہ کے جو ان کے ماہوار اجلاس ہوتے تھے میں ان میں جاتا تھا، تو میں وہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام دیکھتا تھا۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اتنی اچھی فیسلٹی کرتے، وہاں پر انہوں نے کچھ فیس بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جو بچہ اتنے منتھ رہے گا تو وہ اتنا پے کرے گا، ایون دیٹ اگر آپ اتقاء میں بیٹھتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو فی پے کرنی پڑتی ہے۔
तो नाजरीन यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ और इस वक्त दावत इस्लामी नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पर सिलसिले वाले बैठे हैं, नक्शबंदिया बैठा है और इसके अलावा अतारिया बैठा है, कादरी बैठा है, जितने भी सिलसिले हैं ना, ये सब लोग ये कहते हैं कि फितराना सिर्फ हमें दें, ज़कात सिर्फ हमें दें, उशर सिर्फ हमें दें, खिराज सिर्फ हमें दें। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे मुआशरे में बैठे हुए अगर उन अफराद की बात करें जो गरीब तबका बैठा है, जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत तभी जिंदा रहती है जब आप किसी एक इंसान की जिंदगी को बचा लेते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो क्लिप में आप क्या कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे लाज़िम बताइएगा। अभी सिर्फ ये एक चीज पर अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे, अभी आगे एक और वीडियो भी आपने देखनी है कि अगर कोई झूठी कसम उठा लेता है उसका कफारा, तो मैंने ये सुना है कि आप किसी भी यतीम की कफालत कर दें या किसी भूखे को खाना खिला दें तो आपकी कसम का कफारा पूरा हो सकता है, ये रोजे रख ले। लेकिन पैसे उसका फिदिया अदा करना ये कहां पर लिखा है, ये आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है। ये है कि कसम का कफारा रकम से अदा करेंगे तो इसका हिसाब कैसे लगाया जाएगा। कसम सदका फितर की जो मिकदार है ये 1 मिस्कीन का खाना बन जाएगी। सही, यानी 10 मिस्कीनों को देना है तो आप 1 सदका फितर देख लें और 10 सदका फितर आप निकाल लें। मिसाल के तौर पे बाबुल मदीना के हवाले से कि हमारा सदका फितर तकरीबन जो है वो 100 रुपया बनता है, 100 रुपये बनता है, जो आम इलाकों के हिसाब से तकरीबन 100 रुपया बनेगा। तो अगर किसी ने कसम तोड़ दी तो उसके ऊपर जो कफारा आएगा वो 1000 रुपए का कफारा आएगा। तो नाज़रीन, आपने वीडियो का एक क्लिप देखा, वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर ये चीज प्रॉपर वे पे हर एक बंदा मेंशन कर रहा है कि बाबुल मदीना, फिजान मदीना। ये इस चीज का रेफरेंस क्यों देते हैं? इन्हें पता है कि हमें अपना रेफरेंस बाबुल मदीना या फिजान मदीना या दावत इस्लामी मदनी चैनल का लाजमी देना है, ताकि जितना भी पैसा आए तो हमारे ही अकाउंट में आए। और ये हकीकत है, जितने भी मुरीद होते हैं वो अपने जो उनका मतलब लंगर होता है, जो उनका जो मतलब पीर खाना होता है, वो उनसे बहुत मुंसलिक होते हैं। वो अपने जिस्म पर पहना हुआ कपड़ा भी अगर पीर खाना मांगेगा तो वो उतार कर दे देंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए कि अगर किसी के यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके को कोई कपड़े या जूते या वगैरह वगैरह कुछ चीज़ दी जाती है ना, मसल्ला वगैरह दी जाती है, तो वो कहते हैं कि भाई ये पीर खाने पहुँचा दें, वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। जबकि वो चीज़ें आप किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जो कि जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, यानी कि हर अमाउंट जो है ना वो पीर खाने आप प्रमोट कर दें। तो यहाँ पर अगर कसम का कफारा, अगर कोई झूठी कसम उठाता है तो 1000 रुपया एक झूठी कसम को हो गया, 2 उठाई तो 2 होगी, और 50 उठाएगा तो 50,000 हो जाएगा। और इस तरह कितने लोग कितनी कस्में उठाते होंगे। मेरी तो मैथ बहुत कमजोर है, आप कैलकुलेशन करके बताएं कि कितना लाखों रुपया कसम का जो है ना मदनी खजाने में जा रहा है। तो आपने इस वीडियो पर क्या कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। मैं जो बोलता हूँ ना, मेरी तनख्वाह होती ना, मैं कभी नहीं बोलता, निकाल देंगे मेरे को। इनके लिए दुआएं भी करता हूँ, यकीन माने, लेकिन मैं कभी कभी कान भी खींच लेता हूँ। ये मदनी चैनल के सबसे चीफ मुफत्तिश बैठे हैं हमारे पास। दावत इस्लामी के मदनी चैनल से मौलाना इलियास कादरी को कितना फ़ायदा हो रहा है? मौलाना इलियास कादरी दावत इस्लामी से कितने पैसे लेते हैं? अगर दावत इस्लामी इनको पैसे दे तो क्या होगा, अगर ना दे तो क्या होगा? सुनिए इन्हीं की जुबानी। मैं जो बोलता हूँ ना, मेरी तनख्वाह होती ना, मैं कभी नहीं बोलता, निकाल देंगे मेरे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके माते तो हूँ नहीं किसी के, सारे मेरे मदनी बच्चे हैं, मदनी बेटे, मैं इनको प्यार भी करता हूँ, इनके लिए दुआएं भी करता हूँ, यकीन माने, लेकिन मैं कभी कभी कान भी खींच लेता हूँ। किसी फर्द के इस तरह अलग नहीं खींचता, ये नहीं ठीक। और क्या मकसद है? माशाअल्लाह, मैंने जैसे कहा मेरी तो तनख्वाही नहीं है ना, मैं तो कभी भी 1 रुपया भी दावत इस्लामी से नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह की अल्लाह कबूल फरमाए। नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा, इसमें आप मौलाना इलियास कादरी कहते हैं कि मैं तो 1 रुपया भी जो है ना मदनी चैनल से तनख्वाह नहीं लेता, जितना भी काम कर रहा हूं मैं फीस बिल्ला कर रहा हूं। और ये जो आलिशान महल है, ये जो आलिशान गाड़ियां हैं, ये जो मदनी चैनल का
लाखों रुपए की डेली की आमदनी। आप एक सर्वे करें, गूगल पे जाएं, वहां ये लिखें कि मदनी चैनल की एक दिन की कमाई कितनी है, तो वो आपको बताएगा कि एक दिन की कमाई 11 लाख रुपये है। और आप उसको मल्टीपल करें 30 के साथ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मंथली कितना निकाल रहा है और एनुअली कितना ये मदनी चैनल निकाल रहा है। अगर हम बात करें इनके यूट्यूब के चैनल्स की, इस वक्त मदनी चैनल के बहुत सारे चैनल मोनेटाइज है जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर्स हैं, और वो सारा का सारा पैसा जो है ना मदनी अकाउंट में जा रहा है। अगर हम बात करें तमाम मसाजिद का, फिजान मदीना का, और जहां पर इन्हें चंदे बॉक्स रखे हुए हैं उनकी अमाउंट का, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए का महीने का वहां पर जाता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते जब एक कॉल मौलाना इलियास कादरी की तरफ जाती है कि आपने इस फंड के लिए इतने पैसे जमा करवाने, तो कितना अरबों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, इस चीज का अंदाजा नहीं है। और यहां पर मौलाना इलियास कादरी यहां पर यह फरमा रहे हैं कि मैं 1 रुपया भी अपनी तनख्वाह का नहीं लेता, आपको 1 रुपया लेने की क्या जरूरत है, खरबों रुपया तो आपके अकाउंट में है। इसका जो असासे का देनदार होगा ये कौन होगा, ये पैसा कहां लग रहा है, कहां लगाया जा रहा है, ये आम आंख से भी इंसान, ये आम आदमी भी इस चीज को अच्छे से जज कर सकता है कि ये पैसा कहां लग रहा है और कहां जा रहा है, कौन सा बैंक बैलेंस बन रहा है, कौन से अकाउंट में जा रहा है। और उसके बाद फिर आगे गद्दी नशीन अपनी बेटे को बिठाना, और उसके बाद आगे अपने पोते को प्रमोट करना, ये नस्ल दर नस्ल बिजनेस चलता रहेगा, मदनी बिजनेस चलता रहेगा, और हम जैसे बगलोल इनको पे करते रहेंगे और देते रहेंगे और अपनी जिंदगी को तंग करके इनको बादशाहत देते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल आज का इस्लाम को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हैरान होता हूं इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब अला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और हालत ये कि वो किसी बंदे ने कहा था कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर एसी लगाकर और जनाब उसके बाद उतरकर 5 स्टार होटल के एसी वाले हाल में बैठकर हजरत अल्लामा ने दर्स देते हुए कहा उम्मत नबी से दूर हो गई, सादगी इन्होंने छोड़ दी, कैसे ये सुधरेंगे। और फिर उसी 10 करोड़ वाली गाड़ी में वापस बैठकर वापस अपने उस घर में तशरीफ ले गए कि जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, और जो अंदर माशा सेंट्रल एसी वाला रूम है उसमें जाकर हजरत किबला पीर तरीकत बैठ गए। लेकिन वो बहुत सादगी पसंद हैं, वो लकड़ी मिट्टी वाले प्याले में पीते हैं, और नीचे उन्होंने चटाई वाली वो रखी हुई है, खजूरों की खाल वाली चटाई। वाह सुभान अल्लाह, मुर्शिद पे नूर की बरसात हो, क्योंकि बहुत आजिज अल्लाह, वो तो बहुत माशाल्लाह दीन का उनमें जज्बा है, मजाक बनाया हुआ हमने दीन को। जी तो नाज़रीन, आपने हनीफ कुरैशी की इस वीडियो को भी देखा, वो भी यहाँ पर दावत इस्लामी के जो लीडर हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, उनके बारे में बड़े जो है ना खुलकर अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी हद तक वो सही भी बोल रहे हैं। उनका यहाँ पर इस तरीके से नेटवर्क चलाना ये दीन की तबलीग तो नहीं है ना, सिर्फ पैसा पैसा। अभी एक कमेंट मैंने सेक्शन में मैं गया तो एक बंदे ने कमेंट लिखा हुआ था कि मुझे 30 साल मैं इस जमात के साथ रहा हूँ, लेकिन एंड में मुझे ये पता लगा कि 30 साल तक ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का कारोबार करते रहे हैं, दीन का कोई इन्होंने कारोबार नहीं किया। खैर नाज़रीन, हमें इसके पीछे क्या जाना, हमारा काम है आप तक इनकी तमाम ऐसी वीडियो को एक्सपोज करना, ताकि लोग इससे इस्लाही मैसेज ले सकें और अपने आप की रहनुमाई कर सकें। आज के लिए इतना काफ़ी दे अपने होस्ट खुर्रम को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।